محترم سامعین، ہم غالباً یہ مسئلہ ربا سود کا دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور بعض احباب سب لیکچر نہیں سن پائے یا سننے کی تکلیف نہیں گوارا کرتے، اور یہ جو پہلے مسئلہ آیا ہے اس کو دوبارہ سنانے کا حکم دیا ہے کہ سود کیوں کر حرام ہے۔ ویسے اس کے اندر کچھ سوال میں مزید استفسار ہے، وہ یہ کہ سود کی تشریح بہت لمبی چوڑی ہے، یا وہ مسئلہ جو ہم نے پہلے پیش کیا ہے وہ اس کے حساب سے اتنا جامع نہیں ہے جس سے وہ مطمئن ہو سکے، تو ہمیں حکم ہے کہ اس پر بولا جائے کہ ایک آدمی پیسہ خرچ کر کے کسی آدمی کو دکان پر بٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دکان کے نفع میں آپ کا ہمارا حصہ ہوگا، چلاؤ دکان کو تم، پیسے میرے۔ اس میں فقہ کی کتابوں میں اس کو بیع مزاربت کہا گیا ہے، نفع پر کام کرنا، یعنی جو بیٹھا ہے دکان پر اس میں کھپت کچھ نہیں ہے، سارے کی ساری رقم کسی دوسرے کی ہے، خالی وہ بیٹھتا ہے، چلاتا ہے، ٹائم دیتا ہے، وقت دینے کے ساتھ وہ ایک قسم کی محنت کرتا ہے کہ گاہک کو سامان دیا یا باہر تھوک ویپاری سے لایا اور ریٹیل میں بیچا، کام ایک کا پیسے دوسرے کے نفع برابر۔ یہ ایک سوال ہے جس میں فرمایا کسی سوال کرنے والے نے کہ اس پر اتنی وضاحت نہیں آئی، آپ قرآن سے وضاحت دیں۔ بہرحال قرآن سے تو ہم نے پہلے ہی ایک بات پیش کر دی تھی کہ قرآن فرماتا ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے اتنا ہی کچھ ہے جتنا وہ خود کمائے، خود کوشش کرے، خود محنت کرے، اپنی محنت سے پیسہ جو کرے کمائے وہ اتنے پیسے کا مالک ہے۔ قرآن پیسے سے پیسے کمانے کی اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی کو سود پر پیسے دے دو اور اس طرح تم گھر بیٹھے رہو، گھر سوئے رہو اور وہ پیسہ تمہارے لیے پیسہ لے آئے مزید۔ یہ بات قرآن نے نہیں قبول کی۔ قرآن نے کہا کہ سعی چاہیے، سعی مانا کوشش، محنت، کوشش اور محنت سے جو تم کماؤ گے وہ تیرا ہے، تیرے پیسے نے محنت نہیں کی، پیسہ تیرا ہے ہی نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، بچت مال تیرا نہیں ہے، بچت مال وہ اللہ کے حوالے کرو، حکومت تمہارے ضامن ہے، اس کو تم حوالے کرو، وہ حقداروں میں بانٹے۔ حکومت اچھی نہیں ہے تو تم مجرم ہو۔ یہ ووٹوں والی حکومت ایسے ہی ہوا کرتی ہے جس سے تم کو شکایت ہے۔ حکومت وہ ہوتی ہے جو سب کی خیر خواہ، سب کو اپنے گھر کا ایک ممبر سمجھے، اس طرح سب کو سنبھالے۔ حکومت کی ذمہ داری قرآن نے سکھائی ہے۔ قرآن نے سورۃ حج کے 41 نمبر آیت میں بتایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، جن کو ہم اقتدار دیں، زمین میں پاور دیں، گورنمنٹ دیں، حکمرانی دیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسی ڈیوٹی کریں، اقام الصلاۃ، ایسا بہتر گڈ گورننس قائم کریں جو آتوا الزکاۃ، ساری رعیت کے ایک ایک فرد کو سامان پرورش ملے، کوئی سامان پرورش سے محروم نہ ہو، بچے نہ،
आदमी जिसको हुकूमत न संभाले, तो ये काम हुकूमत का है। तो हम जो कमाएं जरूरत के मुताबिक उठाएं, ले लें, बाकी चीज हुकूमत के हवाले करें। लेकिन उसके जो तरीके हैं वो मुत्तफ़िक़ा राय से यानी बनाए जाए कि किस तरह हुकूमत के हवाले करें, हुकूमत किस तरह बांटे, किस तरह हकदारों को हवाले करें। ये आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बहरहाल कुरान ने जो बताया कि अल्लज़ीन याकुलून रिबा, जिन्होंने जायज क्या है, मुफ्ती बहुत बिकाऊ माल है, फतवाएं बिक रही हैं, मौलवी बिक रहे हैं, उनको दे दो। वो कहते हैं कि माल एक का जमीन या एक की कमाने वाला का किसान जो है वो पराई जमीन पर जब हिस्से पति पर खेती बोएगा तो ये जायज है। ये मौलवी साहिबान जायज में बैठे। कुरान इस बात को कबूल नहीं करता। कुरान कहता है पैसा मेहनत का है, जमीन का मालिक अल्लाह है। जमीन के लिए आप अगर जमींदार की इस्तिलाह कहें या जमीन मालिक कहें, इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यरिसुहा इबादियस सालिहून, यरिसुहा इबादियस सालिहून, वारिस होंगे उसके इबादत करने वाले सालिह, मेरे बंदे, इबादी मेरे बंदे जो सालिह हो। सालिह की माना क्या है कि तस्बीह उठा के जिक्र करता रहे। सालिह की माना है 5 नमाज़ें पढ़ो। सालिह की माना है जिसके हाथ में बेलचा हो। सालिह की माना है जिसके हाथ में तंजूर हो। सालिह की माना है कि जमीन के ऊपर हल चलाने वाला। सालिह की माना है इस्लाह करने वाला। इस्लाह जो है वो मस्जिद में बैठकर शू करने से इस्लाह जमीन का नहीं होता। तो सालिह की माना इन्होंने एक से एक दूसरी कर दी है। तो कुरान कहता है ये गलत माना वाले जो हैं उनके लिए कुरान का है ला यकूमून, जो जमींदार, ये जागीरदार, ये पैसे खर्च करके और उसे मेहनत कराने वाले, ला यकूमून, ये इतना यानी कद नहीं बढ़ा सकते, अपना खड़े नहीं हो सकते, इल्ला मगर उसकी तरह कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतान मिनल मस, जिसको शैतान जो है चौकें दे करके खड़ा करे। खब्त कहा जाता है डंडे मारने को, खब्त कहा जाता है लाठी मारने को। दरख्त को लाठी मार करके उससे बेर यानी नीचे लाए जाते हैं या कोई फल उसका गिराया जाता है, उसको खब्त कहते हैं। तो ये झूठी फतवाओं से अमीर बनने वाले, यतखब्बतहु शैतान, अजीब लफ्ज है। कुरान तो डरता नहीं है किसी से, अल्लाह तो किसी से डरता नहीं है, लेकिन हम डरते हैं। यतखब्बतहु शैतान की माना जो लाठी से तुमने फ्रूट दरख्त से मार के उतारा है, तो ये फतवा जो है गलत, ये भी मुल्ला की लाठी है। झूठी फतवा मुल्ला की लाठी है जो तुझे सूद हलाल करके देता है। सूद हलाल करके देता है कि अब तूने पैसे इतने खर्च किए, ये जाए तेरे पैसों से कमाए, आधा नफे में तेरा आधा उसका, ये झूठी फतवा है। ये ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतान, झूठी फतवा देने वाले को कुरान ने शैतान कहा है। अब ये मुफ्ती खुद सोचें, नहीं तो खबत की माना ये मखबूतुल हवास कहते हैं कि पागल, ये माना भाई ठीक है, मखबूतुल हवास पागल हो सकता है, लेकिन वो मखबूतुल हवास अमीर भी हो सकता है ना, पैसे का मालिक, कि तूने उसको फतवा दी, वो अपने तेरी फतवा के ऊपर लाखों से करोड़ों कमा सकता है। ये भी उसकी दिमागी खब्त है उसका। तो दिमागी खब्त का सबब तो फतवा बनी ना। दिमागी खब्त जो उसको हुआ वो मुफ्ती के फतवा से हुआ। तो फतवा कुरान कहता है कि ये कबूल नहीं की जाएगी ऐसी। और फतवा का कुरान ने वो तशरीह भी की, बता दी कि क्या वो मुल्ला लोग फतवा देते हैं, मुफ्ती लोग फतवा देते हैं कि बेअन्नकालू इन्नमल बैअ मिस्लु रिबा, फतवा देते हैं बैअ तिजारत, दुकान चलाना, सूद मिस्लु रिबा, सूदी कारोबार करना एक ही बात है।
पैसे से सूद में पैसे से पैसा कमाया जाता है। तिजारत में भी पैसा लगाओ, दुकान पे ऊपर यानी 1 लाख रुपए का माल खरीद करके रखो, फिर बेचो, तो ये भी उससे भी पैसा कमाना हो। लेकिन इस फर्क को नहीं देखते कि दुकान में अगर आपके 1 लाख रुपए का माल पड़ा है तो वो ताला देकर घर जाके सो जाओ, तो खुद बढ़ो तो पता लगे। 1 लाख रुपए का माल पड़ा है लेकिन दुकान को तूने ताला देके घर जाके सो गया, वो ऐसे तो नहीं बढ़ेगा। माना तुझे उस पर अपना टाइम देना, अपनी मेहनत देनी, सलाहियत देनी है। ग्राहक को मुतमईन करना है कि मेरी चीज सही है, या ग्राहक की जरूरत है तो वहां से उसको दे दे, तो फिर ये उसमें तेरी एक खपत हुई, तेरे टाइम की खपत हुई, तेरे ज़हन की खपत हुई, तेरे यानी ग्राहक को मिसाल उतने वजन की चीज अंदर बोरी से निकालना, फिर तराजू पे रखना, तोल करके फिर उसके हवाले करना, ये एक मेहनत है। तो इस मेहनत का जो नफा है उसको कुरान ने हलाल कहा है। अहल्लल्लाहुल बै इसलिए हलाल है कि उसमें तेरी मेहनत है। रिबा के अंदर मेहनत नहीं है। पैसा बैंक में रखो और उनको कहो कि सूद के बुनियाद पे रखता हूं और ये मेरा पैसा बढ़ता रहे, फिर वो लाख से बढ़ता 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 खबर नहीं कहां तक पहुंच सकता है। जितने टाइम में तुम उनसे वापस लो, तुम्हारे पैसे के कमाई का मीटर वहां फिरता रहेगा, तुझे सूद घर बैठे मिलता रहेगा। तो सूद और तिजारत में फर्क है। मुफ्ती ने ये गलत कहा है कि इन्नमल बै मिसल रिबा, बै और सूद ये एक तरह के मुमासिल है खुद में, ये गलत फतवा है। तो बाद में जो पहले कर चुका हूं, इसके जितने लवाजमात हैं मसले सूद के, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। मैंने यहाँ यतखब्बत शैतान पर आपकी तवज्जो दिलाने के लिए तकरार किया है इस बात का कि खबत के कुरान ने कहा है, जैसे कि डिक्शनरी में है कि खबत की माना है लाठी से, मिसाल दरख्त से फ्रूट उतारना, गिराना, तो ये फतवा को कुरान ने लाठी कहा है, जाहिल की, अंधे की लकड़ी। आप ऐसे समझो कि ये इस तरह की फतवा अंधे की लाठी है, गलत फतवा है। अंधे की लाठी खबर नहीं है चोर को लगे, खबर नहीं किसी शरीफ को लगे, हुई तो अंधे की। तो वो मुफ्ती भी अंधा है जो कहता है कि सूद जायज है। तो कुरान ने उसको यतखब्बत शैतान कहकर अंधे की लाठी करार दिया है। सूद कतअन जायज नहीं है। बढ़ोतरी जो माल में होती है वो मेहनत से होगी तो कबूल है, पैसे से पैसा बढ़ेगा तो वो तुम्हारा नहीं है, वो नाजायज है, कुरान उसको हलाल नहीं करता।